Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study, Art, Motivation and Education. So, I have started a series of developmental disturbances of oral and paraoral structures. That is a chapter 1 of BTS curriculum 3rd year of the subject oral pathology, and it is a very important chapter. इससे पहले हमने cranial facial anomalies and teratogenic agents क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था. आज हम इसके पहले classification, this is a part 1 of classification. There are 2 classification. First is for oral structures and second is for paraoral structure. Now अभी जो हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन फॉर द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ paraoral स्ट्रक्चर्स. दैट इज paraoral स्ट्रक्चर्स में मेनली आपके आती है क्रेनियोफेशियल एनोमलीज, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था. तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन और इसकी डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे वो होगा classification of developmental disturbances of tooth. This is that tooth part is a important part in sense of university exam. University exams में उसका classification और किसी एक डिसीज के बारे में डिटेल के बारे में पूछा जाता है. Now coming to the topic. So classification of developmental disturbances of paraoral structure में हम 7 चीजों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मैं developmental disturbances को DD के नाम से यहाँ पर डिनोट किया है. तो फर्स्ट विल बी developmental disturbances of jaw, then developmental disturbances of lip and palate we have, then we have developmental disturbances of oral mucosa, then we have developmental disturbances of gingiva, then we have developmental disturbances of oral lymphoid tissues, then we have developmental disturbances of salivary gland. सलाइवरी ग्लैंड का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स में पढ़ते हैं. एंड डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टंग. So these 7 developmental disturbances we have for paraoral structures. Now coming to the developmental disturbances of jaw. इसमें हम कौन कौन से डिस्टर्बेंस देखने वाले हैं. फर्स्ट इज एग्नेथिया. एग्नेथिया का मैंने आपको क्रेनियोफेशियल एनोमलीज में एग्जाम्पल दिया था. एग्नेथिया, गिनेथिया मीन्स जॉ. ठीक है, तो ए मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ जॉ, दैट इज एग्नेथिया. माइक्रोग्नेथिया एंड मैक्रोग्नेथिया. तो इसका मतलब माइक्रो यानी कि स्मॉल जॉ एंड लार्ज जॉ. इसमें हम और भी पढ़ते हैं पियर रॉबिन सिंड्रोम, मैंडिब्यूलोफेशियल डाइसोस्टोसिस, देन वी हैव फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी एंड फेशियल हेमी एट्रोफी. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो है, फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी और फेशियल हेमी एट्रोफी. तो मोस्टली इन पर और मैक्रो एंड एग्नेथिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस. नाउ ये तो हुई जॉ की बात. नाउ कमिंग टू डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ लिप एंड पैलेट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ paraoral एंड oral structures. इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. इट इज पर्टिकुलरली अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर और यू कैन से अ वेरी कॉमन डिस्टर्बेंसेज विच हैपन इन क्रेनियोफेशियल एनोमलीज. सो इसमें हम पढ़ने जाएंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में, कॉन्जेनाइटल लिप एंड कमर्शियल पिट्स एंड फिस्टुलास के बारे में, वॉन्डर डॉल्ट सिंड्रोम के बारे में, डबल लिप, cheilitis glandularis we have, then we have cheilitis granulomatosa. So these are the things which we are gonna discuss in developmental disturbances of lip and palate. इसमें सबसे ज्यादा important है आपका cleft lip and cleft palate. Now coming to the developmental disturbances of oral mucosa. Oral mucosa में पढ़ेंगे pigmented cellular nevus, then we have labial or you can say oral melanotic macule, hereditary intestinal polyposis, Fordyce granule. Here the Fordyce granules are important. Focal epithelial hyperplasia. Coming to the developmental disturbances of gingiva, it consists of 2 things. First, 2 disturbances. First, fibromatosis gingiva, we have retrocuspid papilla. Now coming to the developmental disturbances of oral lymphoid tissue. Here we are going to discuss 3 things: reactive lymphoid aggregate, lymphoid hematoma, then we have angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia. Then we come to developmental disturbances of salivary glands. इसमें आप पढ़ेंगे एप्लेशिया, जेरोस्टोमिया. दैट जेरोस्टेमिया आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज ड्राई माउथ. ओके, जेरोस्टेमिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए. एट्रीशिया, एबरेंसी, हाइपरप्लेजिया ऑफ पैलेटल ग्लैंड. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टंग. नाउ डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टंग इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन paraoral स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें हम माइक्रोग्लोशिया, एग्लोशिया. नाउ ग्लोशिया मतलब होता है आपका टंग,
तो एग्लोशिया हो गया मतलब एब्सेंस ऑफ टंग, माइक्रोग्लोशिया यानी कि स्मॉल टंग, मैक्रोग्लोशिया लार्ज टंग, क्लेफ्ट टंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें, एकाइलोग्लोसिया, यहाँ एकाइलोग्लोसिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन फिशर टंग इज इंपॉर्टेंट, मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस वी हैव, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेनली क्या है, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टंग में बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है, उनके चांसेस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा है। हेयरी टंग के बारे में आपसे वाइवा में पूछा जाता है ज्यादातर। Then the benign migratory glossitis, we have lingual varies, lingual thyroid nodules. Now इनमें से अगर बोले तो एग्लोशिया, माइक्रोग्लोशिया, मैक्रोग्लोशिया, एकाइलोग्लोशिया, फिशर टंग, मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, हेयरी टंग, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर इसमें पूरे क्लासिफिकेशन में अगर मैं बताऊं तो इसका क्लासिफिकेशन जनरली पेराओरल स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाता। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टूथ, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, जिसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड विद द क्रेनियोफेशियल एनोमलीज, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि हम क्रेनियोफेशियल एनोमलीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इसका नॉलेज आपको नहीं होगा तो आपको आगे डिसीजेस के बारे में भी ढंग से नहीं समझ में आएगा। सो दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। सो दिस इज अ थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।